ناظرین، ہم یوٹیوب چینل بیوٹی آف سندھ 786 کی جانب سے شاہ عنایت شہید کی مزار پر جھوک شریف آئے ہیں۔ مغلیہ دور کے یہ صوفی بزرگ جنہیں سندھ کے مصلح اول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، شاہ عنایت اللہ 1655 عیسوی سے 1718 عیسوی تک ان کے والد مخدوم سدو لانگاہ تھے۔ 8 جنوری 1718 عیسوی شاہ عنایت کو قتل کر دیا گیا۔ ان کی خانقاہ پر حملہ ہوا، جہاں انہیں ایک اندازے کے مطابق 24,000 صوفیوں سمیت قتل کیا گیا۔ ان صوفیوں کی اجتماعی قبریں، جن کو گنج شہیداں کے نام سے پکارا جاتا ہے، یہاں موجود ہیں۔ شاہ عنایت کے نظریات اور عمل مقامی جاگیرداروں کو برے لگتے تھے۔ اسی وجہ سے صوفی کی اس خانقاہ پر پہلا حملہ تب ہوا جب ٹھٹا کا ناظم لطف علی تھا۔ اس حملے میں خانقاہ کے بہت سارے درویش ہلاک ہوئے۔ ان بے گناہوں کے ورثاء نے جب استغاثہ کیا تو حکومت کی جانب سے قاتلوں کی زمینیں مقتولوں کے ورثاء کو دلا دی گئیں۔ 1716 عیسوی میں لطف علی خان کی جگہ نواب اعظم خان ٹھٹا کا ناظم ہو کر آیا، جس کو تاریخ نے کبھی اچھے الفاظ سے یاد نہیں کیا۔ وہ شاہ عنایت کے دشمنوں کی باتوں سے متاثر ہو کر ان سے مل گیا اور اس نے صوفی شاہ عنایت کی مخالفت میں خانقاہ سے متصل زمینوں، جن کے محصول معاف ہو چکے تھے، پر دوبارہ محصول لگا دیا۔ اعظم خان نے اپنی فوج کے علاوہ یار محمد خان کلوڑو اور دوسرے رئیسوں کے نام احکام جاری کیے کہ وہ بھی مدد کے طور پر اس فوج میں شامل ہوں۔ جنگ کے خاتمے کی کوئی صورت نہ دیکھ کر دشمنوں نے سازشی حربہ استعمال کیا، جس کا مرکزی کردار میر شہداد خان تالپور تھا، جو میاں یار محمد کلوڑو کا انتہائی وفادار تھا۔ وہ اپنے ساتھ قرآن شریف اور امن کے سفید جھنڈے لے کر شاہ عنایت سے ملا اور کہا کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ناظم ٹھٹا، شمالی سندھ کے حکمران اور مغل حکومت یہ جنگ نہیں چاہتی۔ کچھ لوگوں نے حکومت کو غلط رپورٹیں بھیجی تھیں، جن کی وجہ سے غلط فہمیوں نے جنم لیا، مگر اب یہ غلط فہمیاں دور ہو گئی ہیں۔ اب آپ چل کر آمنے سامنے مذاکرات کریں تاکہ یہ جنگ ختم ہو سکے اور مزید انسانی خون بہنے سے روکا جا سکے۔ یہ ایک ایسی سازش تھی جس کو میٹھی زبان میں چھپا دیا گیا تھا۔ صلح کے باتوں میں یہ تھا کہ درویشوں کے جان و مال کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ یہ سرد جنوری کی پہلی تاریخ تھی اور ہفتے کا دن تھا۔ صوفی شاہ عنایت اعظم خان کے پاس پہنچے تو معلوم ہوا کہ یہ صلح نامہ ایک دھوکہ تھا۔ شاہ عنایت کو گرفتار کر لیا گیا، ان پر جھوٹے الزامات لگائے گئے۔ 8 جنوری 1718 عیسوی بھی ہفتے کا دن تھا جب جاڑے کی ایک سرد شام کے وقت شاہ عنایت کو شہید کر دیا گیا۔ جھوک کی خانقاہ پر حملہ ہوا، جہاں ایک اندازے کے مطابق 24,000 صوفیوں کو قتل کر دیا گیا۔ صوفی شاہ عنایت نے مخدوم سدو لانگاہ کے گھر میں 1653 عیسوی میں جنم لیا۔ حیدرآباد دکن بیجاپور کے مشہور عالم و بزرگ عبد المالک کے پاس علم حاصل کیا اور تصوف کا طریقہ اختیار کیا۔ جب وہ سندھ جھوک نزد ٹھٹا واپس لوٹے تو طبقاتی لوٹ مار، جاگیرداروں، پیروں اور میروں کی ناانصافیاں دیکھ کر اپنے آبائی شہر میں ایک ایسے سماج کی داغ بیل ڈالی جس میں انسانیت کے حقوق کو تحفظ حاصل تھا، جہاں محنت سے بہائے گئے پسینے کی قدر تھی، جہاں انسان کی عزت نفس کو غرور کے پاؤں تلے روندا نہیں جاتا تھا،
यहाँ ذات पात व मज़हब की कोई लकीर नहीं थी। यहाँ के लोग चाहे मुर्शिद हों या मुरीद, मालिक हों या हारी, सब मिलकर ज़मीन में हल चलाते थे। आमदनी व पैदावार में सबका बराबर का हक था। सूफ़ी शाह इनायत इस इज्तिमाई इक़्तिसादी निज़ाम के रहबर थे। ज़मीन ये नहीं देखती कि हल चलाने वाला कौन है, वो न रंग देखती है और न ज़ात पूछती है। जिस तरह माँ के लिए सारे बच्चे एक जैसे हैं, इस तरह ज़मीन के लिए भी सारे इंसान एक जैसे हैं और ज़मीन पर सब इंसानों का मुश्तरका हक़ है। ये थे सूफ़ी शाह इनायत के ख़यालात। उनकी इस फ़िक्र को देखकर लोग उनसे मुतासिर हुए और इस निज़ाम में शिरकत के लिए आते गए और यूँ झोंक को जनूबी सिंध में एक मरकज़ी हैसियत हासिल होने लगी। 1716 ईस्वी में लुत्फ़ अली खान की जगह नवाब आज़म खान ठट्टा का नाज़िम मुकर्रर होकर आया, जिसको तारीख़ ने कभी अच्छे अल्फाज से याद नहीं किया। वो शाह इनायत के दुश्मनों की बातों से मुतासिर होकर उनसे मिल गया और उसने सूफ़ी शाह इनायत की मुखालफत में खानकाह से मुत्तसिल ज़मीनों जिनके महसूल माफ़ हो चुके थे पर दोबारा महसूल लगा दिया। आज़म खान ने अपनी फ़ौज के अलावा यार मोहम्मद खान कलोड़ो और दूसरे रईसों के नाम अहकाम जारी किए कि वो भी मदद के तौर पर इस फ़ौज में शामिल हों। ये 12 अक्टूबर 1717 ईस्वी मंगल का दिन था जब झोंक का घेराव शुरू हुआ। मकामी जागीरदारों और हुकूमत की सारी ताकतें एक तरफ यकजा थीं और सामने झोंक शरीफ के सूफ़ी फ़कीर थे जिनके पास कुल्हाड़ियाँ, भाले और खंजर थे। वो रात को दुश्मनों की फ़ौज पर शबे खून मारते थे और कामयाब भी होते थे। 3 माह गुजर गए पर झोंक के फ़कीरों को इतनी बड़ी फ़ौज शिकस्त न दे सकी। तारीख़ के औराक पर तहरीर है कि जंग के खात्मे की कोई सूरत न देखकर एक साजिशी हरबा इस्तेमाल किया गया जिसका मरकज़ी किरदार मीर शहदाद खान तालपुर था, जो मियाँ यार मोहम्मद कलोड़ो का इंतहाई वफ़ादार था और अपने साथ कुरान शरीफ और अमन के सफ़ेद झंडे लेकर शाह इनायत से मिला और कहा कि मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि नाज़िम ठट्टा, शुमाली सिंध के हुक्मरान और मुग़ल हुकूमत ये जंग नहीं चाहती। कुछ लोगों ने हुकूमत को गलत रिपोर्टें भेजी थीं जिनकी वजह से गलत फहमियों ने जन्म लिया है। ये एक ऐसी साजिश थी जिसको मीठी ज़बान में छुपा दिया गया था। सुलह की बातों में ये था कि दरवेशों के जानो माल को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। ये सर्द जनवरी की पहली तारीख थी और हफ्ते का दिन था। सूफ़ी शाह इनायत आज़म खान के पास पहुँचे तो मालूम हुआ कि यह सुलहनामा एक धोखा था और शाह इनायत को गिरफ़्तार कर लिया गया। 8 जनवरी 1718 ईस्वी भी हफ्ते का दिन था जब जाड़े की एक सर्द शाम के वक्त शाह इनायत को कत्ल कर दिया गया। झोंक के खानकाह पर हमला हुआ जहां एक अंदाजे के मुताबिक 24,000 सूफियों को कत्ल किया गया। जाबिर हुक्मरानों के हाथों शाह इनायत कत्ल हुए। इनकी खानगाह उजाड़ी गई। उनके पैगाम को दबाने की कोशिश की गई ताकि जागीरदारी खतरे में न पड़े, मगर तारीख़ ऐसी चीज़ है जो खुद ही इंसाफ कर डालती है। शाह इनायत आज भी सिंध के पिछड़े हुए तबकों के लिए रोल मॉडल हैं, मगर शहदाद खान तालपुर, आज़म खान और साजिश में शामिल दीगर लोगों का कोई नामो निशान नहीं। अबू बकर शेख के शाह इनायत के शहादत के बाद जो उसके फॉलोअर थे उनके सर की कीमत 1 टका रखी गई। जिस किसी शख्स को गेड़ू लिबास ऑरेंज कलर का जो सूफ़ी पहनते हैं दिखने में आता, उसके सर जात कर इनाम वसूल किया जाता था। सिपाही इनाम की खातिर गरीबों को जो बेचारे अपने घरों में बैठे होते या खेतों में काम करते नज़र आते थे, उन्हें गेड़ू लिबास पहनाकर मार देते थे। मोहतरमी जनाब, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि अज़राए नवाजिश आप हमारे यूट्यूब चैनल ब्यूटी ऑफ सिंध 786 को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि हमारे सब व्लॉग आप तक पहुंचते रहें और ये व्लॉग देखकर
बारी बारी एक दफ़ा उनको लाइक किया करें और उसके बाद अपने दोस्तों को ये शेयर किया करें ताकि दूसरे लोग भी हमारे इस YouTube चैनल के साथ मिल जाएं। हम आपके निहायत शुक्रगुजार हैं कि आप हमारी वीडियोस देखते हैं और उनको लाइक भी करते हैं और अपने दोस्तों को शेयर भी करते हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आप सदा आबाद रहें। मां पंहिंजे दोस्तनि खे गुज़ारिश कंदुसि त महिरबानी करे असांजे हिन YouTube चैनल ब्यूटी ऑफ सिंध 786 खे सब्सक्राइब करे इन जे बेल आइकन बटन खे प्रेस कयो ऐं असांजा व्लॉग ॾिसी उन्हनि खे लाइक कयो ऐं पंहिंजनि दोस्तनि खे इहे असांजा व्लॉग शेयर कयो त जीअं उहे बि असां सां शामिल थी वञनि। तव्हांजा निहायत शुक्रगुज़ार रहंदासीं। अल्लाह साईं तव्हांखे ख़ुशि रखे, शला आबाद हुजो सदाईं। वॾी महिरबानी तव्हांजी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातहू। मोहतरमी जनाब, मेरे 2 चैनल हैं। एक ये ब्यूटी ऑफ सिंध 786 और दूसरा चैनल सिंध जी सूंह। आपसे गुजारिश है कि मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे दोनों चैनल्स को देखकर उनके वीडियोस को लाइक किया करें और इन वीडियोस को अपने दोस्तों को शेयर किया करें तो हम आपके बहुत शुक्रगुजार रहेंगे। मुंहिंजा साईं, मुंहिंजी गुज़ारिश आहे त असांजा 2 चैनल आहिनि, हिकिड़ो ब्यूटी ऑफ सिंध 786 ऐं ॿियो सिंध जी सूंह। सो महिरबानी करे अवां मुंहिंजनि ॿिन्ही चैनलनि खे सब्सक्राइब करे छॾींदा कयो ऐं उहे व्लॉग ॾिसी पंहिंजनि दोस्तनि खे शेयर कंदा कयो।